ظالم شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کوئی طریقہ یا دعا بتا دیں۔ ہائے ہائے، ظالم کو اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے جو چاہ رہی ہے کہ میرا میاں مجھ سے محبت کرے۔ اس ظالم کو جو نعمت انسان کو ملتی ہے اس نعمت کی انسان قدر نہیں کرتا۔ ایسے ہم نے بڑے گھر دیکھے، بیوی کی قدر نہیں کی، پھر وہ جناب کہیں اور انوالو ہونا شروع ہو گئی۔ غیرت مند عورت تو کبھی بھی نہیں ہوگی، جب جس کے نکاح میں ہو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی، لیکن طلاق مانگنا شروع کر دیا اس نے، پھر وہ ساری زندگی مرد اس کو یاد کر کے روتا ہے۔ تو اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، دعا پڑھ لیا کریں۔ ایک وہ سورہ فرقان میں ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھنی چاہیے، عورت کو بھی مرد کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اس میں یہی ہے کہ اللہ ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو زوج کا لفظ عربی میں شوہر پہ بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت دے بھائی۔ یہ موبائل نے بڑے مسئلے خراب کیے ہیں۔ موبائل نے نا، آج ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر عرفان نام ہے ان کا۔ تو آج کوئی زیادہ میرا خیال ہے فیس بک پہ زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن میں اسے سرچ کر رہا تھا تو ایک کلپ سامنے آ گیا، مجھے بڑا خاندانی کلپ لگا، تو میں نے نیچے کمنٹ بھی کیے اور میں نے کہا یار میں ان کا نام لے کے شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے، ڈاکٹر عرفانی ہے نا، ہیلو، بعض دفعہ غلط آدمی کا نام لے لیتا ہوں، ڈاکٹر عرفانی ہے نا، ایک ڈاکٹر نادر علی کو انٹرویو بھی دیا ہے، عرفان کیسا، عفان، دیکھو غلط نام لے رہا تھا، ٹھیک ہے، کوئی عرفان ہوگا اپنے نام کے ساتھ چلا دے گا۔ عفان کیسر صاحب، ساری باتوں سے تو کسی کے بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اور لیکن یہ کہ یہ ایک کلپ میں نے دیکھا، بڑا شاندار کلپ تھا اور بڑی زبردست بات کی، کیونکہ میرے پاس اسی نوعیت کا ایک کیس آ چکا تھا۔ اسی نوعیت کا کیس یہ تھا کہ خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہیں اور فیس بک کی ویڈیو دکھا رہی ہے کہ فلاں تو اپنی بیوی کو ناران لے کے گیا ہوا ہے، فلاں کاغان لے کے گیا ہوا ہے، فلاں اپنی بیگم کو پھول پیش کر رہا ہے اور میرے میاں یہ محبت مجھ سے کرتے ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹائٹ بات کی، وہ بات یہ کی کہ یہ جو فیس بک ہے نا، یہ گھروں میں فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال یہ طلاقوں کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جو بھی میاں بیوی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، وہ ناران کاغان کی ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ گھر میں تھپڑ اور ہاتھا پائی کی ویڈیو شیئر نہیں کرتے۔ اب وہ جو کاغان میں لے جا کے اپنی بیگم کو پھول پیش کر رہا ہے، گھر میں تھوڑی ایسا ہوگا وہ، کیونکہ اس کو فیس بک پہ لوگوں کی ویوز چاہیے اور لوگوں کے کمنٹس چاہیے پازیٹیو، تو ظاہر ہے وہاں جا کے تو پھول بھی پیش ہوں گے، گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے اور تمیز سے بات بھی کی جائے گی، اور کاغان میں بیگم کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ناران میں یہاں جا رہے ہیں۔ اصل پریکٹیکل لائف کہاں ہے بھائی؟ گھر میں۔ گھر میں ہو سکتا ہے بیگم کو چائے کا بولتا ہو، بیگم چائے نہ بنا کے پلاتی ہو، اور بیگم اس کو کچھ بولتی ہو، انڈے لے کر آؤ، یہ دوستوں میں جا کے بیٹھا رہتا ہو، گٹر کے ڈھکن میں پوری پوری رات گزارتا ہو، کاغان ناران میں ہار پھول پیش کر رہا ہے وہ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ یہ سب چیزیں نا خواتین گھر میں دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہی ہیں، ڈپریشن میں جا رہی ہیں کہ فلاں کا میاں تو ایسا۔ بھائی تمہارے میاں کے اندر جو خوبی ہے تم اس خوبی کو دیکھو، یہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں نہ دیکھو فلاں اپنے میاں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کر رہی ہے اور فلاں میاں اپنی بیگم کے ساتھ۔ یہ ایسے ہی جیسے ڈراموں میں یا فلموں میں عاشق اور معشوقوں کی وہ ڈائلاگ دیکھ کے نا پھر عورت چاہ رہی ہوتی ہے میرا میاں بھی میرے ساتھ یہ ڈائلاگ بولے کہ میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا۔ یہ تو کبھی بھی پنکھا ٹھیک نہیں کیا اس نے اتنے دنوں سے، آسمان پہ جانا تو دور کی بات، چھت پہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو پریکٹیکل لائف میں جب ایک عملی زندگی میں لوگ آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ بیسک ذمہ داریاں اگر نبھا رہا ہے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بیسک ذمہ داریاں، گیس بجلی کا بل دے رہا ہے، کما کے کھلا رہا ہے، اور تحفظ دیا ہوا ہے آپ کو، بچوں کے اسکول کی فیسیں اٹھا رہا ہے، وہ بچوں کو ایک سرپرست ملا ہوا ہے باپ کی صورت میں، تو پھر عورت کو چاہیے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر ٹھیک ہے شوہر سے نخرے بھی کیے جا سکتے ہیں، ہمیں بھی ناران لے جاؤ، اللہ کرے لے جائے وہ، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ بھائی اس کو ناران کاغان لے جاؤ، لیکن صرف ناران کاغان ہی نہیں ہے یا ہنزا ہی نہیں ہے کہ وہ فیس بک پہ دیکھ دیکھ کے محبتوں کے ڈائلاگ اور ہار پھول۔ فلمی دنیا الگ ہوتی ہے بھائی، پریکٹیکل دنیا الگ ہوتی ہے۔ تو گھروں میں جا کے دیکھا کرو یہ کون سے جو ہے نا پھول پھول کا تبادلہ چل رہا ہے گھر کے اندر۔ گھر میں تو یہ ہوگا کہ وہ تو ریلیشن ختم اس سے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں تو اصل بات میں کر رہا تھا کہ میاں کے موبائلوں پہ اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، اس کو بیگم اچھی لگی نہیں رہی ہوتی، موبائلوں پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ بیگم وہ بات کر ہی نہیں سکتی اس اسٹائل میں، ٹھیک ہے نا، اس کو تھوڑی دیر میں غصہ آ جائے گا۔ تو یہ سارا حساب کتاب موبائل سے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ گھر میں جاؤ تو موبائل کو لاک کر کے بند کر دیا کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل استعمال ہی نہ کرو، یہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے فائدے کی ہے، اس سے بہت ساری اچھی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، ایک محدود وقت رکھو، اور اس طرح کی ویڈیوز تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرو، اکیلے نہ دیکھو۔
यानी मोबाइल ही को मियां बीवी के रिलेशन का जरिया बना लो ना। अबे बहुत से लोग कहते हैं यार हम बेगम से बात क्या करें, तो करने की कोई बात ही नहीं होती, जब बात करती है उल्टी बातें करती है, तो कोई बात ही नहीं होती। बहुत सारे मियां बीवी को शिकायत होती है, वो क्या बात करूं मैं। औरत को कहती है, मैं बाज दफा मर्द को शिकायत होती है कि बीवी मुझसे बातें नहीं करती, औरत कहती है मैं क्या बात करूं इस बंदे से बैठ के, क्या बात करूं, कोई बात ही नहीं होती, दोनों का मिजाज ही मिल रहा। तो मोबाइल में कोई जायज प्रोग्राम देखना है तो वो दोनों मिल बैठ के क्या कर लो, बयान सुन रहे हो किसी मौलाना का, दोनों मिल बैठ के सुन लो। कोई जायज एंटरटेनमेंट की कोई जायज चीज हो, क्योंकि मोबाइल में एंटरटेनमेंट की नाजायज चीजें ज्यादा हैं। कोई जायज चीज देख रहे हो, कोई मुशायरा सुन रहे हो, कोई मज़ाहिया शायरी सुन रहे हो, या कोई वैसे कोई प्रैंक वगैरह देख रहे हो, तो मियां बीवी साथ बैठ के देख लो ना। उससे क्या होगा कि वही टाइम जो वेस्ट हो रहा था आपका, वो एक रिलेशन की बहाली का जरिया बन जाएगा कि चलो यार टाइम स्पेंड किया बेगम के साथ। तो इस तरीके से कर लिया करो। अच्छा, एक और अहम बात, ये जो आज का बयान हुआ इससे मुताल्लिक एक और बात, जब जाके टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए ना, ये मैं बाज़ जगह बयान के लिए जाता हूं तो मुझे लिफाफे में लोग हदिया दे देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, होता नहीं आमतौर पे, लेकिन पंजाब में आमतौर पर ये रिवाज है कि जब बयान करो तो वो कोई 5-10 हज़ार का 20,000 रुपए लिफाफे में डाल के पकड़ा दिए उन्होंने। तो उन लोगों को भी मेरी तरफ से ये वजाहती में बयान चाहता हूं कि चला जाए, क्योंकि बाज़ दफा दरमियान में कोई बयान रखवा रहा होता है मेरा, जैसे पंजाब में, ये केपीके में और कराची में ही ऐसा रिवाज नहीं है कि बयान के बाद कोई पैसे वैसे देने का रिवाज हो। पंजाब में ये रिवाज बहुत है, जब भी किसी मौलाना साहब का बयान होता है तो आम तौर पर वो उसको हदिया देते हैं, जलसों में खास तौर पे। तो ये बात भी खूब समझ लें कि बाज़ दफ़ा कोई दरमियान में वास्ता होता है, जो मेरा बयान मदरसे वालों ने उनसे राब्ता किया होता है कि भाई आपका इनसे सलाम दुआ है, राब्ता है, आप मुफ्ती साहब का हमारे यहाँ बयान रखवा दें। तो वो मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ओके कर देता हूँ। अब उसमें बाज़ कंप्लेंट ऐसी सामने आई है कि जो वास्ता था दरमियान में, उसने मदरसे वालों से कहा कि मुफ्ती साहब को इतने पैसे आप दे देना। तो यहां भी मैं वजाहत करना चाहता हूं कि मेरे बयान का कोई 1 रुपए भी कमीशन या पैसा नहीं है। चाहे अमेरिका में जाऊं, जापान में जाऊं, इंडोनेशिया में जाऊं, दुनिया में कहीं भी सफर हूं। बाज़ दफा ऐसे भी हुआ कि किसी बैरून मुल्क से मुझे लोगों ने कहा कि हम आपको बयान के लिए बुला रहे हैं, आप बता दें आपके पैसे कितने बनते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे तो इस पे भी तौहीन महसूस होती है यार, कोई कमर्शियल बना रहे हो तुम तबलीग को भी, तो कोई पैसे वैसे हमारे उसके भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं फिर लेते क्यों हो आप। जब मैं गया बयान के लिए, कहीं कहीं ऐसा होता है, पंजाब में खास तौर पर, पंजाब वालों के इस मामले में थोड़े से दिल भी बड़े हैं, उनके लिए तो ये अच्छा ही है कि खतीब को बुलाया है तो एक उससे इतना काम लिया है, तो उनके लिए तो अच्छा यही है ना कि दें वो, हमारे लिए कि ना लें। अब मजमे में जब कोई लिफाफा किसी को दे रहा होता है ना, तो उसका इनकार करना सामने वाले की बेइज्जती है। तो मेरे दिल की हालत अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि मैं सामने वाले की इज्जत रखने के लिए लेता हूं मैं, कि यार अगर इनकार किया ना, वो सामने वाला अपनी इंसल्ट महसूस करता है। अब लोग उसको ये रुख ले कि अच्छा ये आए तो थे जी दीन की बात करने के लिए, और इधर लिफाफों के क्या चल रहे हैं, तबादले चल रहे हैं। तो वो तबादले इस नौयत के होते हैं, हमारा ना कोई चार्जेस हैं, ना मैंने किसी को कहा है। अगर कोई किसी को कह रहा है मुझे पैसे तो वो खुद जिम्मेदार है, मैंने कतन, और मुझे पता चल जाए तो मैं गुस्सा भी होता हूं उसके ऊपर कि आपने क्यों बोला उसको कि मुफ्ती साहब को इतने पैसे दे देना। फिर भी अगर कोई लिफाफा दे रहा होता है ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसका इनकार करना, वो सामने वाले की बेइज्जती है। यहां भी लोग आते हैं खुशबू लेके, पूरे जमा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खुशबुओं के, तो वो खुशबू लेके आ रहे होते हैं। ये थोड़ी होता है कि यार उसका इनकार कर दो, वो तो शरीयत के भी खिलाफ है, बल्कि मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई 5 रुपए भी हदिया देता है, भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मोहब्बत का इजहार किया, और ये बनता है। और ये जो मैं हज पे पिछले साल गया, उस कंपनी ने जो ट्रैवल एजेंसी थी, मैंने उनको बोला कि मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन वहां जाके मैंने उनको प्रमोट किया। फिर क्यों, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। जब मुझे यकीन हो गया कि इनके दिल में लालच नहीं है, तो फिर एक आदमी ने हम पे इतना खर्चा करके हमको हज करा दिया, तो फिर अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। फिर मैंने कैमरे में उनका प्रमोट किया, मैंने कहा इन लोगों की ये खिदमत है कि मुझे हज पे लेकर आए हैं। तो ये वो एक अलग नौयत की, इसकी मिसाल ऐसे, जैसे एक दफा मैं कहीं जा रहा था, डबल सवारी पे पाबंदी थी, हम डबल सवारी में जा रहे थे, पुलिस वालों ने रोक लिया, यहीं की बात है, कलंदरी चौक नहीं है इधर, तो उतार दिया। गलती थी हमारी, नहीं जाना चाहिए था। पुलिस वाले अब रिश्वत मांग रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा रिश्वत, जायज नहीं है। उनको तो नहीं कहा कि जायज नहीं है, दिल में सोचा कि जायज नहीं है। अब टोपी मैंने पहनी हुई, हुलिया पूरा मौलवियों वाला, पीछे जो बंदा बैठा वो भी मौलाना टाइप का। अब मुझे बार बार शर्म ये आ रही थी कि ये पुलिस वाला कहेगा देखो यार ये लालची लोग हैं,
डबल सवारी भी है और पैसे भी नहीं दे रहे, और ये मौलवी लोग लालची होते हैं, एक से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। और मुझे ये था कि मैंने दे दिया तो ये तो रिश्वत होगी सीधा सीधा, तो मैं फिर कैसे कहूंगा कि यार ये रिश्वत देना ठीक नहीं है या ये गलत है। तो मुझे बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने नहीं दिया, हालांकि मेरे जेब में पैसे पड़े हुए थे। तो पुलिस वाले को भी तरस आया, उसने बोला जाओ आइंदा डबल सवारी नहीं करना। उसने बोला बच्चे बेचारे लौंडे, उम्र भी ज्यादा नहीं थी हमारी, तो शक्ल से कुछ नेक टाइप के ही लग रहे हैं। पुलिस वाले का चल जाओ यार आइंदा ख्याल करना, वरना पुलिस वाला जबरदस्ती निकलवाना चाहता ना पैसे लाजमी निकालता, वो रोक नहीं सकते थे। अब उसने हम पर एहसान किया ना, इस माने में एहसान नहीं कि छोड़ दिया, वो तो लोग कहेंगे भी गैर कानूनी काम कर रहे थे तो छोड़ना नहीं चाहिए था। इस माना में एहसान के पैसे मेरी जेब में भी थे, तलाशी लेते निकल आते। लेकिन उसने क्या किया, दाढ़ी देखी टोपी देखी, जाओ यार। मैं आगे गया हूं, मैंने बाइक रोकी, फिर मैं आया और मैंने जो मेरे उस वक्त अल्लाह ने जितनी मुझे तौफीक दी वो मैंने पैसे निकाल के पुलिस वालों को दिए। वो कह रहे हैं खैरियत। मैंने कहा भाई उस वक्त मैं देता रिश्वत होती, अब मैं अपनी दिल की खुशी से देता। जब आपने हमारी टोपी का ख्याल किया, आपने हमसे पैसे नहीं लिए, छोड़ दिया ऐसे ही, या तो जेल भेज देते ठीक है ना, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम क्या करें। तो बड़ा खुश हुआ वो। तो अगर मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं ना बिलफर्ज, तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है किसी ने बड़ी खिदमत की होती है और वो खिदमत फ्री फोकट में की होती है, कोई उसने मुआवजा नहीं लिया होता, तो फिर मेरी गैरत भी, मुझे भी दिल चाहता है कि यार जब इसने इतना किया है, इसने हमें फ्री में हज करा दिया और इतना महंगा हज करवाया, वीआईपी वाला हज, तो फिर तो इतना तो बनता है कि कैमरे में नाम ले लो कि यार ये ट्रैवल एजेंसी है, इसने बड़ी खिदमत की है। लेकिन पहले से पता होना इसके दिल में लालच है, फिर नहीं मैं जाता, तो वो एक अलग नौयत की है। तो ये आपको बताने का मेरा बुनियादी मकसद ये कि आजकल बहुत ज्यादा ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मुझ पे भी लग रहे हैं, और फिर मेरा नाम लेके लोग सब मौलवियों को लानतें भेज रहे होते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था अपनी तारीफों करने का, हमें अपनी बुराइयां भी मालूम है, इंसान अपनी बुराइयां कभी एक्सपोज नहीं करता, छुपाता है, लेकिन ये इल्जामात मत लगाया करें, इसलिए ये सारी बात बताना मकसद थी। मेरी उम्र 20 साल है, माँ बाप को शादी का कहता हूँ लेकिन वो नजरअंदाज करते हैं, हालांकि मैं बरसरे रोजगार भी हूँ। आपने गुनाह ना बताया करो भाई, आप पर लाजिम है शादी करना। अगर गुनाह का ये जो आपने तस्करा किया ना, तो माँ बाप की इताअत जायज नहीं है आपके लिए। आप कमा रहे हो, आप रिश्ता तलाश करो, अम्मा अब्बा को एतमाद भी लेने की कोशिश करो, आ जाए ठीक है, नहीं तो शादी करके बता दो हो गई है। देखो अपना खानदान खुद इंसान आबाद कर लेता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हम शादी करेंगे तो हमारा खानदान से हम कट जाएंगे। भाई शादी करके तुम्हारा एक खानदान और वजूद में आ जाएगा, दूसरी शादी करोगे और कट जाओगे तो एक और नया खानदान मिल जाएगा, तीसरी शादी करोगे और कटोगे तो एक और मिलेगा, चौथी शादी करोगे तो और कट के आपका खानदान जो था ना वो आपके खानदान का एक पार्ट बन जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ में। अभी जो मेरा खानदान है, जब मैंने दूसरी की तो बहुत से मेरे खानदान में भी लोग खिलाफ थे, कुछ ने कहा जाने तो करने तो, लेकिन बहुत से खिलाफ भी थे, तो मुझे लग रहा था मैं खानदान से कट जाऊंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खानदान में जो पॉपुलेशन है ना, मेरे जो खानदान में, वो मेरे वाले खानदान की पॉपुलेशन से ज्यादा है। अब वो वाला जो मेरा खानदान था ना, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे खानदान का एक पार्ट है। नहीं यारी बात समझ में, वो मेरे खानदान का क्या है, एक पार्ट है। और थोड़े दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये फिर मेरा ही खानदान होगा। मुफ्ती साहब मशहूर होने के बाद आप अपनों से दूर और गैरों के करीब हो गए हैं। कभी कभार अपने पुराने नमाजियों से मिल लिया करें, कोई जान को खतरा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं जितना अपने पुरानों से आज भी करीब हूँ, नयों से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे पुराने दोस्त सारों को फोन कर करके बुलाता हूँ। कभी नली निहारी खाने जा रहा होता हूँ, कभी जावेद निहारी जा रहा होता हूँ, कभी थड़े पे बैठा हुआ होता हूँ, और उसी पुराने स्टाइल में। अब अगर कोई पुराना मुझसे मिलना चाह रहा है और मैं बिलफर्ज नहीं मिल पा रहा, तो या तो उसका मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, बीच में जो मिलवाने वाले लोग हैं वही गड़बड़ कर देते हैं या बताते नहीं होंगे मुझे, तो वरना मुझे पुराना मिल जाए तो मैं तो पुराने को छोड़ता नहीं हूँ भाई। पुरानों को तो मैं अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जितने मेरे स्कूल के और पुराने लोग हैं, वो अभी ये देखो हमारे पुराने हैं ना जाहिद भाई, इनको मैंने सबसे ज्यादा आज टाइम दिया है। क्यों? हमारे बचपन के हैं दोस्त, मेरे वाले साहब से बड़ी इनकी सलाम दुआ थी। कितने लोग आज मुझसे मिलने के लिए आए नए, आप खुद बताओ, मैंने एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दिया। ये चूंकि पुराने थे, असर के बाद इनके लिए चाय बनवाई, बैठा मगरिब तक, असर से मगरिब तक इनके पास बैठा हूं मैं। हालांकि मेरी इनसे कोई मफाद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि क्या है, पुराने हमारे वाले साहब की भी सलाम दुआ थी, इनसे बचपन हमारा साथ गुजरा है, तो पुराना आ गया तो पुराने को हम नहीं छोड़ते भाई। समझता नहीं है ना बात को। बाकी कोई अगर पुराने को लिफ्ट नहीं करा तो किसी गलत फहमी से होगा, वो जानकर ऐसा नहीं होता।
बाज दफा इतना पुराना होता है कि पहचान में ही नहीं आ रहा होता ना, पुराना होने की भी तो एक लिमिट होती है ना। इतना पुराना बंदा आ जाए, उसके जमाने की ट्रेनें बंद हो गई हो, उसके जमाने की करेंसी खत्म हो गई हो, तो वो मैं इतना पुराना थोड़ी हूं कि ऐसे लोग आदमी को पहचानूंगा भाई। समझ आ रही है बात? बाज दफा इतना पुराना आ जाता है कि वो फिर हमें नहीं पहचान में नहीं आता। मेरे वाले साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पर मुझसे। मैं तो अपने पुराने टीचरों को तलाश करके मिलता हूं भाई। हम लोग शहरी लोग हैं, हमारे खानदान सारा पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा मिजाज देहाती है, समझ रहे हो? अच्छा, मुझे लोग समझते हैं किसी पिंड का, किसी गांव का। कई लोगों ने आके मुझसे पूछा आपका कबीला कौन सा है। अबे मैंने कहा हम लोग कोई कबीले वबीले नहीं होते भाई, हम कराची के शहर में रहे हैं, हमारे सारे रिलेटिव वो भी शहरी हैं। मेरे जब नाना माइग्रेट हिजरत करके आए तो वो सरगोदा शहर में आर्मी में थे, तो कजन वजन सारे, कोई फौज में ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, सारा शहरी। और मेरे भाई भी सारे शहरी मिजाज के हैं। किसी को ना जानवर पालने का शौक है और ना किसी को गार्डनिंग का शौक है। ये मैं ही शायद खानदान में ऐसा हुआ हूं कि जिसने गाय पाली भी है, गाय का बच्चा भी है, चूजे भी हैं, और ये देहाती स्टाइल मुझे पसंद है। मैं जब लॉन्ग रूट पे जाता हूं ना, तो भी मेरी कोशिश होती है कि किसी बड़े होटल में खाना ना खाऊं। जो गांव देहातों में जो कच्चे होटल होते हैं ना, आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं, कोशिश मेरी होती है कि मैं वहां मंजी पे, जिसमें नीचे से भी हवा लगे इंसान को, वो जो मंजियां होती है ना, चारों तरफ से हवा लग रही होती है, गाय भैंसे डले, मैं कोशिश करता हूं वहां बैठ। वहां की दाल और भिंडी बड़ी मजे की होती है। जो कच्चे होटल होते हैं उनकी रोटी भी मजे की होती है। हाँ, दोस्त अहबाब साथ में उनको फिर टेंशन होती है, तो उनकी टेंशन से बचने के लिए वीआईपी होटल में चले जाएं तो एक अलग बात है। तो मैं मिजाज का शहरी हुई नहीं, तो मुझे तो गांव देहातों की जिंदगी पसंद है। रहते हम शहर में ही हैं, समझते हो, लेकिन पिंड से हमारा ताल्लुक नहीं है। और ये मेरे बचपन से मेरा मिजाज है, इससे मेरे वालिद साहब बहुत परेशान थे मुझसे, क्योंकि हमारे वालिद साहब तो ठेठ शहरी थे, नेवी में थे। तो मैं घर में मुर्गियां लाके पालता था। मुर्गियां घरों में कहां पलती हैं, वो बीट करती थी। फिर वो वालिद साहब गुस्सा होते थे, बकरी ले आए हम, तो फिर वो बस फिर कभी गार्डनिंग बहुत की है मैंने। हमारे घर में छोटी सी क्यारी थी, बचपन में मैंने उसमें पपीता उगाया, मैंने उसमें खरबूजे उगाए, मैंने उसमें फूल उगाए, क्या कुछ नहीं उसमें। और अब के बीजों में और पहले के बीजों में फर्क ये था, इधर बीज डालो इधर फल निकलता था, कोई स्प्रे कभी नहीं किया, कोई यूरिया नहीं डाला। इतने खरबूजों की बेलों से हमने खरबूजे खाए, इतने पपीते खाए हमने, पता नहीं क्या क्या नहीं उगाया होगा मैंने, आम उगाया। अब हम गार्डनिंग कर रहे हैं, कम वक्त कोई पौधा ही नहीं उगता किसी बीज से। 100 बीज डालोगे तो एक उगेगा, उसमें भी जब तक रोजाना स्प्रे ना करो। ये बीजों का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये जो हमें बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं ना बीज, ये बीज ही पता नहीं किस किस्म के बीज पैदा हो गए हैं। तो मैंने इतनी गार्डनिंग की कोशिश की, हो ही नहीं रही। तो फिर मुझे ये हमारी लौंडे लपाड़े जो है ना, ये बांजे इन्होंने बोला कि भाई ये अब नहीं होता, ये स्प्रे भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये पौधों को भी आदत डाल दी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ? पौधों को खराब कर दिया यार वैक्सीनेशन कर करके। मेरे वाले साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुझसे इनकी बदअखलाकी हो जाती है। कोई गुनाह तो नहीं, अल्लाह से माफी मांगनी पड़ती है। देखो, माँ बाप का तो बहुत बड़ा हक है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बाज दफा माँ बाप की तरफ से भी यकीनन बहुत ज्यादती होती है। वो बिला वजह औलाद को टार्चर करते हैं। ये हमने भी इसी सोसाइटी में पढ़े हैं ना, पले बड़े हैं, तो हमने भी देखा है। तो बाप को चाहिए कि अगर बच्चा आपका है तो कोई इस्लाह करने का भी एक तरीका होता है। उसको इतना टॉर्चर बात पे कभी, यानी बाज घरों में देखे, ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जो